Hello everyone, once again welcome back to An Academy. Myself Ajay Das. Let's crack Gate EAC with India's largest online learning platform. I hope all of you know that An Academy has become India's largest online learning platform where the many students from any backgrounds they are just approaching the Unacademy for their preparations, right? So let's crack Gate AAC with India's largest online learning platform. Get the plus subscription now and start your preparation with unlimited live and recorded video lectures. So myself Ajay Das, I'm aptitude in computer science. I have a 8 plus year of teaching experience. I've trained almost 20,000 plus engineering students for the GATE as well as training and placement. Apart from that, I have worked as a freelancer at many reputed institutes of India. And I have cracked the GATE exam 5 times below the AIR 500. Also, I have qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8. Download the Unacademy Learning app and start your preparation sitting anywhere, anytime. But you have to maintain regularity and the consistency. So, what you will get? This is a major question which always arises in the mind of everyone, every student. So the first thing, you are going to have a daily life classes. The second thing is the structure courses. Inside the structure courses basically means the first thing is whatever the subject is running or upcoming, you will be pre-intimated so that you will be prepared for the next subject. You can check the demo lectures of each and every faculty because there are multiple educators for a single subject. So what you can do, you can take the demo lectures of each and every educator, and whatever the subject you are feeling comfortable with the educators, you can just follow him. Okay, so this is the meaning of the structure courses. And the next thing is the live test and quizzes. Time to time self evaluation is the very necessary thing. So what is the benefit of the test and quizzes is you can evaluate yourself what is your position in front of all India basis, and accordingly you can make your effort. क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हम कितने पानी में हैं और कितने मेहनत करने की जरूरत है. The next thing is the unlimited access. Unlimited access means you can access the video lecture any number of time until you grasp the entire concept. So learn with the top educator. This is the one of the biggest, or you can say the greatest weapon of any organization, institutional organization. So Unacademy is providing you India's best educators. So here some of the few educators are here from electrical, electronics and civil, and these are the educators from the mechanical and electrical. So my dear friends, what I am trying to say, whatever the educators you are seeing over here, I have just mentioned the few of them. What you can do, you can download the Unacademy app, you can go to the Gate EAC courses, and you can check each and every educator related with your branch. You can check their profile, you can check their history, what kind of result they have produced in their career, and then after the confirmation you can choose the plus subscription. But if you want to take the plus subscription, of course you are looking for a certain branch. So since I'm a computer science background, so I will talk a little bit more about the computer science. But if some of your friends are like preparing for the gate exam and they belongs to the electrical, mechanical, civil, chemical production, you can refer them also to get the subscription. But if you are referring them, then tell them to use the code which is just mentioned over here, that is the IFA. What is the code over here? That is the IFA. So might be you are looking for the 1 month, 3 months, or 6 month subscriptions, or you may be looking for the 12-month subscription. So your 12-month subscription fees is 25,000. You can refer your friend to use the code IFA, and you will get the minimum 10% discount. How much? Minimum 10% discount. For more clarification, you can contact me on this number. This is my telegram number, 92649545. So once you will apply this code, this is my promo code, immediately you will get the 10% discount and your final fees will become 22,500. So this is the much nominal fees which any student from the any background can afford. Are you getting my point? So also you can go for the 6 month subscription, you can go for the 3 month subscription.
But remember one thing, if you will think logically, then there is a difference of only 5,000 from the 6 month to 12-month subscription. Means logically with 5,000 you are getting for the 6 month subscription. Never forget this. Here the 6 month subscription is the 20,000. By adding 5,000 you are directly getting the 12-month subscriptions. Okay, now if you are looking for the gate 2022, means if you are in a second year or the third year, then I will advise must go for the 24-month subscription. My dear friends, for the 1 year subscription, there is a fees 25,000, and for the 2 year subscription, there is a fees 30,000. Logically, what we are getting over here, with the help of 5,000, we are getting the subscription of 1 month, 1 year. Are you getting my point? With 5,000, you will directly get 1 year subscription. So means you are getting a almost advantage of the 20,000 if you are taking for the 24-month subscription. Again, this is not a fees what is mentioned over here. Once you will apply this code, this is the my code, you will immediately get 10% discount. This is the minimum discounts you are getting, and your final fees will become 27,000. So my dear friends, this is one of the nominal fees which any student can afford. And before leaving the introductory session, I will tell you one more thing. The code which is mentioned over here, please remember, everyone, please remember, this code is not only applicable for the GATE and EAC. If some of your friends are looking for the CAT, GRE, UPSC, banking, IIT, JEE, or whatever the courses which are available inside Unacademy platform, all of them can use the code IFA. Are you getting my point or not? All of them can use the code IFA and they will get minimum 10% discount. How much? Minimum 10% discount, and their final fees will become 27,000 in this particular situation. And you can look upon the other fee structure also, because the different courses have the different fee structure. So आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके घर में रिलेटिव्स हैं, जो भी है, अगर वो कोई भी कोर्सेज अनअकैडमी से ऑप्ट करना चाहता है, सब्सक्राइब करना चाहता है, you can refer them to use the code IFA, and all of them will get the minimum 10% discount. For the more clarification, you can personally text me on the Telegram number which I have provided. Okay, now let's crack GATE at the rate first attempt. Actually, let's crack it. Whatever the exams you are looking for, we are here to make you crack any kind of competitive exam in the first attempt. So it requires a little bit of your consistency, your effort, your dedications, and our teaching will combine, make you capable to crack any kind of competitive exam. So our today agenda or the topic is the IP addressing part 2. Okay, the IP addressing part 2. So already we have seen some of the basic concept in our previous lectures, and today we are going to discuss the IP addressing part 2. So before starting this particular topic, let's see how the subnetting is being done. ठीक है ना, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आईपी एड्रेसिंग के बारे में जाना था, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लासफुल क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है, ठीक है ना, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जान लिया था, कैसे क्लास में डिवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सबनेटिंग के बारे में और डेप्थ में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो यू हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द सबनेटिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सबनेटिंग पार्ट. सपोज ये ISP है. Already I have told you what is the ISP. That is the Internet Service Provider. An ISP is providing an IP address 200.200.200.0/24. This is the subnet mask. Already I have discussed to an organization. This is the organization A. Now the organization A wants to do the subnetting. The organization A wants to do the subnetting. Okay. So this is called the out of the network. Okay, this is the out of the network, and this is the router which is creating its own network, and this is the router of the organization A. This is the router of organization A. So what IP address we will allocate to this particular organization? This IP address which is assigned by the ISP, and which is 200.
200.0/20. So my dear friends, already I have told you what is the meaning of subnet mask. Here, this one is the IP address, this one is the IP address, and this one is the subnet marks. Subnet marks. So if the subnet marks is, if the subnet mask is given as /24, what does it mean? The number of addresses, I'm not talking about the host, okay? The number of addresses in this subnetwork will be 2 to the power 32 minus 24 is equal to 2 to the power 8 is equal to 256. What is the meaning of masking? Whenever we are creating a masking by the 24-bit and total IP address length is the 32-bit, means from beginning to up to 24-bit, the user or the organization cannot alter any bits. अगर सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है? हाइड करना. फेस हम लोग लगाते थे ना बचपन में, फेस को हाइड करना. तो अगर सबनेट मास्क /24 है, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अप टू 24 बिट, the user do not have any authority to change any one of the bits, and that's why before giving the IP address, the ISP also provide the subnet marks so that these particular bits 24 bit can be reserved. And how many bits are accessible by the users? Only 8 bit. तो 24 बिट अगर मास्किंग किया हुआ है तो लास्ट के जो 8 बिट होंगे वो यूजर एक्सेस कर सकते हैं. और एक बात तो क्लियर हो गया इस बात से कि इस नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? 256. नाउ लेट्स सी हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ए वांट्स टू डू द सबनेटिंग. ऑर्गेनाइजेशन ए 3 तरह का सबनेट बनाना चाह रहा है, ठीक है ना? 3 तरह का सबनेट बनाना चाह रहा है. पहले सबनेटवर्क में 100 होस्ट है, ठीक है ना? दूसरे सबनेटवर्क में 50 होस्ट है, एंड तीसरे सबनेटवर्क में अगेन कितने होस्ट हैं? 50 होस्ट है. टू एलोकेट द 100 नंबर ऑफ होस्ट, हाउ मेनी बिट्स वी विल रिक्वायर? 7 bits, and for the 50 number of host we will require 6 bits, and again for the 50 we will require the 6 bits. Means these are the 3 subnetwork. This is the first subnetwork, this is the second subnetwork, and this is the third subnetwork. We have to create a 3 subnetwork. So कैसे create करेंगे? तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस है, ये सबनेट मार्क्स यहाँ पर क्या गिवन है? /24, ठीक है ना? और /24 का मतलब क्या होता है? द एक्सेसिबल नंबर ऑफ एड्रेस इज 256, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द टोटल एड्रेसेस इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो 256 को अगर 2 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करें तो पहले सब नेटवर्क में कितने जाएंगे भाई? 128. दूसरे में भी आएगा 128. सो इन दिस पर्टिकुलर सब नेटवर्क द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी 128. और 128 अगर इस सब नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ एड्रेस है, इस सब नेटवर्क में अगर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 128 है, व्हाट डज इट मीन? इसका सबनेट मास्क कितना होना चाहिए? /25. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईपी एड्रेस राइट नाउ. ये बात तो क्लियर है, इसका सबनेट मास्क /25 होना चाहिए, क्योंकि सबनेट मास्क /25 का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, वो कितने होंगे भाई? तो 2 to the power 32 minus 25. So this one will become 2 to the power 7, and this one will become 120. So total number of addresses that can be allocated over here is 128, out of which how many we are consuming? We are consuming only 100. ठीक है ना? तो होस्ट का एलोकेशन भी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि दूसरे वाले राउटर, मीन्स ये दूसरा सब नेटवर्क है, तो 2 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भी सबनेट मास्क कितना होगा? /25. तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आईपी एड्रेस असाइन करते हैं.
तो 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट 0। तो फर्स्ट आईपी हम लोगों ने इस सब नेटवर्क को दे दिया। फर्स्ट आईपी मींस देखिए इसको तो कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि सबनेट मार्क्स है /24 और ये फिक्स किसने किया है, आईएसपी ने किया है बाय यूजिंग द सबनेट मार्क्स /24। सो this particular part can never be changed. Whatever we want to change, we can change on the last byte. So यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, the first IP address .0 which is the sub network address of this particular sub network, इस पर्टिकुलर सब नेटवर्क का एड्रेस है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हो रहा है .0 से, ठीक है। अब देखिए अगर ये .0 से स्टार्ट हो रहा है तो होस्ट का आईपी एड्रेस कहां से स्टार्ट होगा, ये सभी होस्ट है, फर्स्ट टोपोलॉजी से ये सभी होस्ट कनेक्टेड है, इमेजिन करिए, ठीक है ना। तो ये अगर .0 हम लोगों ने नेटवर्क को दे दिया तो .1 आईपी एड्रेस इसका होगा। भाई मैं सारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑफकोर्स .1 का मतलब क्या हो गया, 200.200.200.1। so of course this part will remain same for all the hosts. So if this is the .1 then this will become .2 .3 and up to .100। मुझे 100 होस्ट चाहिए थे, मैंने 100 दे दिया, तो बचा कितना एड्रेस, तो ऑफ कोर्स इसमें टोटल एलोकेट कितने हो सकते हैं 128, जिसमें से पहला तो मैंने नेटवर्क को दे दिया है, 100 यहां पर दे दिया है, और लास्ट वाला आईपी एड्रेस यहां पर क्या होगा, जो हमारे लास्ट आईपी एड्रेस होंगे, लास्ट आईपी एड्रेस will be .127 and this will never be assigned to any host. Hope you remember my previous class because this is called the broadcast ID. So देखिए मैंने आपको पहले के क्लास में ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि दो आईपी एड्रेस कभी भी होस्ट को असाइन नहीं किए जाते हैं। द फर्स्ट आईपी एड्रेस विच इज यूज्ड फॉर द नेटवर्क आईडी एंड द लास्ट आईपी एड्रेस विच इज यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। गॉट इट। एंड इंटरमीडिएट जितने भी आईपी एड्रेस है वो हम लोग होस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर .1 से स्टार्ट किया था, .100 तक गए। अब 101 से लेकर के 126 तक ये जो आईपी एड्रेस है ये अभी रिजर्व है, ठीक है ना, बैकअप में रिजर्व है क्योंकि हम लोग 100 होस्ट यूज कर रहे हैं। तो लेटर ऑन इन फ्यूचर वी कैन यूज द रिजर्व आईपी एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। सो दिस विल बी द सबनेटिंग। सो ये जो नेटवर्क है ये .0 से स्टार्ट हुआ और एंड कहां पर हो रहा है 127 पे। हम लोगों ने .0 से स्टार्ट किया एंड वी हैव एंडेड एट द 127। तो अगर ये 127 पे एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट कहां से होगा, तो ऑफ कोर्स 128 से स्टार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट विल बी द आईपी एड्रेस 200.200.200.128। नाउ ये जो रिक्वायरमेंट था ये हमारा फुलफिल हो गया है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, 50-50 होस्ट। तो 50-50 होस्ट के लिए एक्सेसिबल बिट कितने चाहिए, 6 बिट चाहिए। और यहां पर हमारे पास एक्सेसिबल बिट कितने हैं भाई, अगर सबनेट मार्क्स, देखिए इस बात को समझिए, अगर सबनेट मार्क्स गिवन है /25, व्हाट डज इट मीन, जो एक्सेसिबल बिट होंगे, एक्सेसिबल मीन्स जो यूजर एक्सेस कर सकता है, जो एक्सेसिबल बिट्स होगा वो कितना होगा 32 - 25, दिस इंप्लाइज 7 बिट्स, ठीक है ना। 7 बिट्स यहां पर हमारे एक्सेसिबल है, लेकिन 50 होस्ट को एलोकेट करने के लिए 6 बिट काफी है, 6 बिट काफी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर वी विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इनटू द 2 सब नेटवर्क। दो अलग अलग सब नेटवर्क में फिर से इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो /25 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितना होगा 128। तो 128 को अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी ये /26 आएगा, मतलब 64, और यहां पर भी ये /26 आएगा। गॉट इट एवरीवन? एंड इट इज क्रिएटिंग इट्स ऑन नेटवर्क and it will create its own। Clear everyone? Now just see over here। अब ये सभी होस्ट है, इसके अंदर ये सभी होस्ट है।
तो यहाँ पर टोटल 50 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि नेटवर्क आईडी क्या होगा। तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर क्या होगा, 200.200.200.128। ये मैंने नेटवर्क आईडी दे दिया। तो देखिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस नेटवर्क का भी नेटवर्क आईडी 128 है, इसका भी 128 है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल इफ द सबनेट मार्क्स इज डिफरेंट। अगर सबनेट मार्क्स डिफरेंट होता है तो द सेम नेट आईडी वी कैन असाइन, क्योंकि जनरली नेटवर्क आईडी, उस नेटवर्क आईडी में कोई भी पैकेट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सबनेट मार्क्स से ही आइडेंटिफाई होता है। ये जस्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये 128 से स्टार्ट हुआ है, तो पहला आईपी एड्रेस विच इज द 128 वी हैव असाइन टू द नेटवर्क। तो दूसरा आईपी एड्रेस कहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो .129.140, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, तो 64 मीन्स .190 तक जा सकता है। और इस पर्टिकुलर सब नेटवर्क में जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा वो कितना होगा, .190। so this will become the broadcast id, this will become the broadcast, ओके, इन दिस पर्टिकुलर सब नेटवर्क। तो ये एंड कहां पर हो रहा है, 191 पे। तो अगर ये 191 पे एंड हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट कहां से होगा, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो द नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट फ्रॉम 200.200.200.192। तो 192 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, तो पहले होस्ट का आईपी एड्रेस होगा 193, 194 और लास्ट वाले होस्ट का आईपी एड्रेस होगा 254। और इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे .255 विल बिकम द ब्रॉडकास्ट आईडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो पहले वाले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, तो 127, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी है 191 और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी है .255। Now let's try to analyze how the packet is moving inside the network। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि पैकेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है किसी भी नेटवर्क में। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका, ठीक है ना। चलिए, इन सब पार्ट को मैं नहीं ले रहा हूं, मैं बस नेटवर्क को ले रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग दिस इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। See over here. See over here. Suppose we are just considering a situation. We are just considering a situation that a packet is reaching to this router. इस राउटर पे एक पैकेट आ रहा है, ये एक आईपी पैकेट है। We are just trying to look upon the movement of IP पैकेट। तो किसी भी आईपी पैकेट में 3 ब्लॉक होते हैं। One is the data, second one is the source IP and the third one is the destination IP। Of course अगर पैकेट यहाँ पर आ रहा है तो destination IP क्या रहा होगा, you can take anyone। Suppose we are considering .130, ठीक है ना, मीन्स destination IP हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, 200.200.200.140। और सोर्स आईपी क्या है, दिस वन इज सपोज x.y.z.w। सोर्स आईपी कुड बी एनीथिंग, ये बाहर से आ रहा है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। नाउ व्हेनेवर दिस आईपी पैकेट, दिस इज द आईपी पैकेट, दिस इज द आईपी पैकेट विच इज विजिटिंग टू दिस राउटर। और अभी मुझे ये नहीं पता है कि राउटर के अंदर का राउटिंग टेबल कैसा होता है, फाइंड इट प्लीज। Right now I am not discussing about what is the routing table of this particular router, and we are imagining this particular IP packet is visiting to this router. Now how the router will take the decision whether the incoming packet belongs to my network or not, got it? So here we are trying to look upon the movement of IP। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिएगा कि आईपी पैकेट नेटवर्क में मूव कैसे करता है। तो जब ये आईपी पैकेट इस राउटर के पास आएगा, यू कैन गिव द नेम ऑफ द राउटर। सपोज दिस इज द राउटर R1
this is the router R2, this is the router R3, this is the router R4, and this one is the router R. Total 5 router है. So first of all, this packet will reach to the router R1. So how the R1 will take the decision whether the incoming packets belongs to my network or not. So the router will try to find out the network ID, net ID. This is the operation we are doing in the router R1. So net ID will be calculated with the help of destination IP AND operation. This is the bitwise AND operation. Subnet mask. Subnet. So first of all, what the router will do, the router will try to find out the network ID with the help of IP address, that is the destination IP address and the subnet mask. So my dear friends, what is the destination IP address over here? The destination IP address is 200.200.200.130. And what is the subnet mask of the router R1? This is the /24. This is the /24. And what does it mean? This particular end is a bitwise end. Is a bitwise AND operation. Hope you have studied about this into the C programming. So जब आप इसका AND operation करोगे तो resultant value क्या आएगा? आप इसको कर करके देख लेना, ठीक है ना? 200.200.0. So this is what we are getting at the router R1. So by just taking the ANDing operation of the destination IP address with the subnet mask, the router will capture the network ID and it will try to match this network ID with its on network ID. So अब क्या हो रहा है, जो network ID आप वहां से calculation से gain कर रहे हो और वो उस network ID को अपने network ID से check करेगा. If both are matching, then the router will allow the incoming packet to come inside the network. Are you getting my point or not? So if both the network ID are matching, then the router will allow the incoming packet to come inside the network. तो अब ये router R1 क्या करेगा? It will allow the incoming packet to reach or come inside the network. तो अभी routing table के बारे में हमें नहीं पता. तो अगर हमें routing table के बारे में नहीं पता, तो router R1 क्या करेगा? It will forward the packet into this router as well as in this router. तो राउटर R1 इस पैकेट को इस नेटवर्क पे भी सेंड करेगा और इस नेटवर्क पे भी सेंड करेगा. बट इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग टेबल, देन द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड यूनिकली. पैकेट दोनों तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा. अगर आपके पास राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन है तो वो हमेशा यूनिक मैनर में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा. बट मुझे अभी नहीं पता, तो मैं दोनों तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना. चलिए, अब क्या हो रहा है, ये पैकेट राउटर R2 के पास पहुंच रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि राउटर R2 पे क्या हो रहा है. तो राउटर R2 पे ये भी नेट आईडी कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना. इट विल आल्सो कैलकुलेट द नेट आईडी. एंड हाउ इट विल कैलकुलेट? लाइक destination IP AND operation with subnet mask. What is the destination IP? 200.200.200.130 AND operation. And what is the subnet mask of the router R2? This is the /25. So once you will take the AND operation, it will come 200.200.200.128. Yes or no? Once you will take the AND operation with the subnet mask /25, it will create 128. Now whether this IP address, this is the network ID, whether this IP address is matching with the net ID of this router? No. So what the router R2 will do? It will discard IP packet. Are you getting my point or not? तो यहाँ पर राउटर R2 क्या करेगा? इस इनकमिंग पैकेट को सिंपली डिस्कार्ड कर देगा. डिस्कार्ड करने का मतलब होता है उसे ड्रॉप कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना. Are you getting my point? Simply the router will destroy the incoming IP packet, and the same packet is reaching to the router R3. Router R3 भी यही ऑपरेशन करेगा. And what the IP address router R3 will get?
the net ID the router R3 will get is the .128. So ये जो net ID है इस राउटर के net ID से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. So if it is matching, the router R3 will come to know the incoming packet belongs to my network. So it will allow to come the packet inside its network. Are you getting my point? So again मुझे यहाँ राउटिंग टेबल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को यहाँ पर भी फॉरवर्ड करेगा और यहाँ पर भी फॉरवर्ड करेगा. तो चलिए इस पैकेट को यहाँ पर भी फॉरवर्ड करते हैं, मीन्स राउटर R4 पे क्या हो रहा है और राउटर R5 पे क्या हो रहा है. तो देखिए राउटर R4 पे क्या कैलकुलेट होगा, तो राउटर R4 पे नेट आईडी क्या कैलकुलेट होगा, तो डेस्टिनेशन आईपी दैट इज द 200.200.200.130 और इसका एंड ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, /26 से. तो ये क्या आएगा 200.200.128. Are you getting my point or not? So it will be a 128. Similarly यही ऑपरेशन राउटर R4 पे भी होगा, सॉरी राउटर R5 पे भी होगा. तो राउटर R5 के केस में भी नेटवर्क आईडी क्या आएगा भाई, क्योंकि राउटर R5 के केस में भी सबनेट मार्क /26 है, तो इट विल गेट द नेटवर्क आईडी 200.200.200.128. Now please try to realize over here, in both the cases we are getting the network ID 128 and 128. So at the router R5 what the router will take the decision, राउटर R5 का नेटवर्क आईडी क्या है भाई .192 और यहां पर ये कितना आ रहा है .128. सो राउटर R5 क्या करेगा, R5 will destroy the packet. destroy the packet. क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि राउटर R5 को पता चल गया कि ये जो इनकमिंग पैकेट है इसका डेस्टिनेशन होस्ट मेरे नेटवर्क पे बिलोंग नहीं कर रहा है. डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है भाई आप किसी भी पैकेट को अपने नेटवर्क के अंदर कब अलाउ करोगे, जब वो होस्ट आपके नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है. तो जब वो होस्ट उस आईपी एड्रेस का मींस .130 आईपी एड्रेस का होस्ट अगर उस नेटवर्क के अंदर है ही नहीं, तो आप उस पैकेट को अपने अंदर अलाउ क्यों करोगे. एंड दैट्स व्हाई द राउटर R5 will simply destroy the IP packet. Are you getting my point or not? And what the router R4 will do, it will allow the packet to come inside the network. तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये भी क्या करेगा, अलाउ करेगा. और आप देखो .130 जो होस्ट है वो इसी नेटवर्क पे बिलोंग कर रहा है. सो सिंपली इट विल फॉरवर्ड द पैकेट हियर and it will move into each and every host and finally it will be delivered to the host IP address .130, and in this manner the packet will be reached to the destination. So I hope this particular fundamental thing is clear to all of you. So this we have considered one of the situation. Now let's see the another situation that is the quite interesting, and based on that you will be able to solve the previous example. You will be able to solve the previous example. See case 2. Case what I am doing, the situation is same. ISP जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन A को IP एड्रेस दे रहा है. क्या IP एड्रेस दे रहा है, 200.200.200.0/24. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन A है ये अब सबनेटिंग कर रहा है. सबनेटिंग कैसे कर रहा है इस बात को समझिए, ठीक है ना. ये आपका आउट ऑफ द नेटवर्क है, तो ऑफ कोर्स नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होगा 200.200.200.0/24. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. तो यहां से मैं यहां तक आ गया, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ होस्ट है, इसके अंदर ये सभी क्या है, और एक जो पार्ट है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है बस टोपोलॉजी से, बस टोपोलॉजी से इससे कनेक्टेड है, ठीक है.
इस तरह से इससे कनेक्ट, इस तरह से मैंने नेटवर्क जनरेट किया है। ये एक नेटवर्क हो गया और यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द सब नेटवर्क, ओके, एंड this is the entire network. Please try to understand. This is the entire network. ठीक है, this is the entire. तो अगर राउटर का सबनेट मास्क ऊपर वाले राउटर का, सपोज दिस इज द राउटर R1 एंड R2, ठीक है ना, दिस इज द राउटर R1 एंड दिस इज द राउटर, तो राउटर R1 का अगर सबनेट मास्क /24 है तो इमीडिएटली यहां से पता क्या चलता है कि इस राउटर के अंदर मींस इस पूरे नेटवर्क में नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होने चाहिए, द नंबर ऑफ एड्रेसेस शुड बी 2 to the power 32 minus 24 and this implies 256. ये बात तो क्लियर हो गया कि इस राउटर R1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 256 होंगे एंड यू जस्ट इमेजिन दीज आर द ईथरनेट, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, ये सभी इंटरफेस होते हैं। तो सपोज ये हमारा ईथ 0 है एंड दिस वन इज द ईथ, फाइन। तो ये दो अलग अलग इंटरफेस से ये दोनों सब नेटवर्क कनेक्टेड है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है, ऑफ कोर्स फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, .0 अगर नेटवर्क आईडी है, मेन नेटवर्क आईडी है, तो .1 फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि .1 हम लोग यहां से असाइन करेंगे या यहां से असाइन करेंगे, दिस इज माय क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो लेट्स सी, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर बस टोपोलॉजी पे टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हम लोग असाइन कर दिए हैं 128 और यहां पर भी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस असाइन किए हैं 128। तो यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 128 है तो डेफिनेटली इसका सबनेट मास्क कितना होगा, /24 ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने दो इक्वल पार्ट में क्रिएट नहीं किया है। और दिस वन विल बिकम 200.200.0. Now, my question is whether it will be a /24 or it will be a /25. So देखिए, बेसिकली सबनेट मास्क जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस पे। अगर आप टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 128 असाइन कर रहे हो तो सबनेट मास्क भी 120 उसके अकॉर्डिंगली होगा। 128 अगर एक्सेसिबल बिट्स है तो इसको एक्सेस करने के लिए कितना बिट चाहिए, 7 बिट्स चाहिए। तो मींस यू हैव अ 7 बिट एक्सेसिबल, तो कितने बिट को रिजर्व करना होगा, 25 बिट्स को। तो ऑफ कोर्स इट विल नेवर बी अ /24, it should be a very good, it should be a /25, it should be a /25. okay, and now my question is कि जो पहला आईपी एड्रेस है वो यहां पर असाइन करेंगे या यहां पर असाइन करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करिए। सपोज हम लोगों ने पहला आईपी एड्रेस यहां असाइन कर दिया तो ये हो जाएगा .1, .2, .3 एंड अप टू .127, ठीक है ना। तो 127 एंड 128 यहां पर खत्म हो रहा है, तो यहां पर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 129, ओके, start from here 129.130 and similarly .254, okay, this one will become .254 and of course 255 will remains the broadcast ID। अगर हम लोग इस तरह का आईपी एड्रेस का अरेंजमेंट करते हैं तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको आइडेंटिफाई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा कि ये सही है या गलत है। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक आईपी पैकेट आ रहा है, दिस इज द डेटा और सोर्स आईपी में गिवन है, सपोज कुछ भी गिवन है x.y.z और डेस्टिनेशन आईपी में गिवन है .130, ठीक है ना।
तो जब ये आईपी पैकेट राउटर R1 पे रीच करेगा तो राउटर R1 क्या करेगा, चेक करेगा अपने सबनेट मास्क से हेल्प से। तो अगर आप .130 का एंड ऑपरेशन करते हो किससे, /24 से, ये कहां पर हो रहा है, राउटर R1 पे, तो ये कितना आएगा, .0। सो ऑफकोर्स दिस इज द नेट आईडी, this is the net id, and this network id is matching with the network id of the router R1. So what the router R1 will think, it will allow the incoming packet inside its network। लेकिन अब ये अगर अलाउ करना चाह रहा है तो ये पैकेट को ETH1 इस पर्टिकुलर इंटरफेस से भी निकाल सकता है और इस पर्टिकुलर इंटरफेस से भी निकाल सकता है। तो चलिए, अभी मुझे राउटर का कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो अगर मुझे अभी राउटर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वी आर फॉरवर्डिंग द पैकेट इन बोथ द डायरेक्शन। तो मैंने इस डायरेक्शन पे सेंड किया, तो इस डायरेक्शन में ये पैकेट कभी भी राइट डेस्टिनेशन को रीच नहीं करेगा, बिकॉज दिस पैकेट विल कम टू ईच एंड एवरी होस्ट and none of the host IP address is .130, so the packet will be finally discarded। तो फाइनली इस पर्टिकुलर बस टोपोलॉजी पे पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये पैकेट अल्टीमेटली यहां पर आएगा और यहां पर राउटर R2 पे क्या होगा, राउटर R2 पे अगेन डेस्टिनेशन आईपी दैट इज द 130, इसका एंड ऑपरेशन होगा, किससे एंड ऑपरेशन होगा, इसके सबनेट मास्क से /125। तो ये कितना आएगा, .128। तो .128 का मतलब क्या हो गया, दिस इज द नेट आईडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये नेट आईडी इसके नेटवर्क आईडी से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सिंस दिस नेटवर्क आईडी इज नॉट मैचिंग विद द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर राउटर, सो द राउटर R2 विल अगेन डिस्ट्रॉय द पैकेट और ड्रॉप द पैकेट। अगर ऐसा होता है तो क्या पैकेट कभी भी राइट डेस्टिनेशन को रीच करेगा, नहीं करेगा। एंड दिस इज द रीजन वी कैन नॉट असाइन .1 IP एड्रेस ओवर हियर, वी विल स्टार्ट असाइनिंग द फर्स्ट IP एड्रेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब नेटवर्क। सो ये जो अभी का मेरा असाइनमेंट था ये गलत असाइनमेंट था, ठीक है ना। तो एक्चुअल असाइनमेंट कैसे होगा, इसके बारे में सोचो। एक्चुअल असाइनमेंट होगा .1 हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, .1, .2, .3, this is the .127 and this one will become .129, .130, .131 and .250। got it everyone? So this will become the final arrangement. This will become the final arrangement if you want to deliver the IP packet to the right destination। तो यहां पर देखो इस नेटवर्क के लिए अगर हम लोग इस नेटवर्क की बात करें तो इस नेटवर्क का भी नेटवर्क आईडी क्या होगा भाई, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या होगा, सेम होगा और सबनेट मास्क भी क्या होगा, यही होगा। तो यहां पर दो अलग अलग नेटवर्क का, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का भी नेट आईडी ये है, सबनेट मार्क्स ये है, जो कनेक्टेड है किससे, ETH0 से। मींस आप यहां पर देखो इंटरफेस ETH0 से कनेक्ट होने वाले का नेटवर्क आईडी कितना है, 200.200.200.0 और सबनेट मार्क्स है /24। जो नेटवर्क इस इंटरफेस से कनेक्टेड है इसका नेटवर्क आईडी ये है और सबनेट मार्क्स ये है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड नेट आईडी एंड दिस इज कॉल्ड सबनेट, ओके। एंड दूसरा इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है, तो ETH1 मींस इस पर्टिकुलर इंटरफेस से और इस पर्टिकुलर इंटरफेस से, इस इंटरफेस से भी जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसका नेट आईडी क्या है, 200.200.0 और सबनेट मार्क्स भी कितना है, 4। तो इट कुड बी पॉसिबल कि दो अलग अलग इंटरफेस सेम नेटवर्क एंड सबनेट मार्क्स से कनेक्टेड है और इसी पे बेस्ड ये 2006 का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर, ये 2004 का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। तो जनरली होता क्या है, अल्टीमेटली हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने क्या लर्न किया है कि अगर दो अलग अलग नेटवर्क
सेम इंटरफेस से कनेक्टेड है, मीन्स दो अलग अलग सेम नेटवर्क, ठीक है ना। ये वाला नेटवर्क भी इसी इंटरफेस से कनेक्टेड है और ये वाला नेटवर्क भी इसी इंटरफेस से कनेक्टेड है। और ये वाला नेटवर्क का नेटवर्क आईडी भी आप यहां पर देखो, इसका भी नेटवर्क आईडी सेम है, लेकिन सबनेट मास्क क्या है, डिफरेंट है। नेट आईडी सेम है बट सबनेट मास्क डिफरेंट है। तो आप सोचो कि अगर कोई भी आईपी पैकेट यहां पर आ रहा है, कोई भी आईपी पैकेट .130 का अगर विजिट कर रहा है, .130 का अगर विजिट कर रहा है, तो हम लोग /24 से भी सब एंडिंग ऑपरेशन करेंगे और /25 से भी एंडिंग ऑपरेशन करेंगे। तो /24 से कितना आएगा, इट विल बी अ .0 एंड /25 से कितना आएगा, .128। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अगर हम लोगों ने किसी आईपी पैकेट को सेंड किया है राउटर पे, ठीक है ना, किसी आईपी पैकेट को हम लोगों ने सेंड किया है, आईपी पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी क्या गिवन है, डेस्टिनेशन आईपी गिवन है 200.200.200.140। तो इसका हम लोग एंड ऑपरेशन /24 से भी करेंगे और एंड ऑपरेशन /25 से भी करेंगे टू गेट द नेटवर्क आईडी। तो इस केस में नेटवर्क आईडी कितना आएगा, 200.200.200.0, और इस केस में कितना आएगा, 200.200.200.128। तो 128 नेम का कोई नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, this kind of network is not existing, so the packet will be forwarded into this interface। और ये इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, तो दिस इज कनेक्टेड विद द इंटरफेस, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है कि अगर कोई भी आईपी पैकेट आप इस तरह का सेंड कर रहे हो, जिसका डेस्टिनेशन आईपी कितना है, 200.200.200. सपोज 95। तो इसका भी हम लोग एंड ऑपरेशन किससे करेंगे, /24 से एंड /25 से। 24 से करेंगे, नेटवर्क आईडी क्या आएगा, 200.200.200.0, और 25 से भी करेंगे तो क्या आएगा, 200.200.0। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, ये जो है ये इंटरफेस ETH1 से कनेक्टेड है और ये जो है ये इंटरफेस ETH0 से कनेक्टेड है। और हम लोगों ने जो आईपी पैकेट सेंड किया है उसका आईपी एड्रेस क्या है, .95। तो देखिए .95 मीन्स आप यहां पर देखो, /25 वाला जो सबनेट मार्क्स है, /25 वाला जो सबनेट मार्क्स है वो इंटरफेस ETH0 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और ये जो है ये इंटरफेस ETH1 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये /25 से कनेक्टेड है और ये वाला जो इंटरफेस है मीन्स ये किससे कनेक्टेड है, /24 से कनेक्टेड है। तो ये एक ऐसा आईपी एड्रेस है जिसका हम लोग /24 से भी एंड करें तो ये आईपी एड्रेस आ रहा है, मीन्स दिस इज द नेटवर्क आईडी वी आर गेटिंग। और /25 के केस में भी यही नेटवर्क आईडी आ रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि पैकेट को फॉरवर्ड किस इंटरफेस पे करना है, ETH1 पे या ETH0 पे। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। जाहिर सा बात है कि 1 से लेकर करके 127 तक का जितने भी होस्ट है वो /25 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, /25 वाले नेटवर्क सबनेट मास्क पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका रीजन भी मैंने अभी यहां पर आपको बता दिया था, ऐसा अरेंजमेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो डेफिनेटली इफ टू डिफरेंट नेटवर्क आईडी इज मैचिंग, देन लुक अपॉन द सबनेट मार्क्स, ठीक है ना। सी, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, if two different see, if two network ID is same
after ending operation, after ending operation, then forward incoming packet, that should be IP packet, to the longest subnet marks matched. Are you getting my point? So अगर दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी सेम आ रहा है एंडिंग ऑपरेशन के बाद, तो डेफिनेटली वो जो होस्ट है वो /25 वाले पे ही एग्जिस्ट कर रहा होगा. इसीलिए मैंने टर्म्स क्या यूज किया है, लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स मैच्ड. Got it. So my dear friends, ultimately we will forward the packet from the ETH0, and in the same concept this particular questions were asked. So see over here what the question is asking. यहाँ पर एक राउटिंग टेबल दिया हुआ है, इसमें डेस्टिनेशन आईपी है, सबनेट मार्क्स है और इंटरफेस गिवन है. ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन विच इंटरफेस द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट एड्रेस टू द डेस्टिनेशन, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है ना. तो चलिए ये हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है. ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं. तो पहले वाले आईपी को देखते हैं. आईपी 1 क्या दिया हुआ है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 128.75.43.16. इसका एंड ऑपरेशन करेंगे. किससे करेंगे, तो जितने भी सबनेट मार्क्स है ये सारे सबनेट मार्क्स है. ठीक है ना. मैंने बताया था कि 225.225.225.0 इस सबनेट मार्क्स का मीनिंग क्या होता है, /24. तो इसका अगर आप एंड ऑपरेशन करते हो /24 से, यहाँ पर कितना आएगा 128.75.43.0. यस और नो. अगर इसका हम लोग करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा .0. सिमिलरली इसका अगर आप एंड ऑपरेशन करते हो किससे, /25 से, बिकॉज व्हाट डज इट मीन, दिस बेसिकली मीन इज /25. तो इससे भी अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करते हैं तो ये कितना आ रहा है 128.75.43.0. सेम यही आएगा क्योंकि यहां पर ये 16 है, लास्ट वाला वैल्यू यहां पर 16 है, तो ये भी हमारा .0 ही आएगा. नेक्स्ट अगर इसका हम लोग एंड ऑपरेशन करते हैं, एंड ऑपरेशन करते हैं किससे, स्लैश दिस वन, इसका मतलब क्या हो गया /32. इससे अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करते हैं /32 से, तो एज इट इज यही कॉपी हो जाएगा 128.75.43.16. तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं. तो जब मैं इससे एंड ऑपरेशन कर रहा हूं तो ये नेटवर्क आईडी आ रहा है, इससे मैं नेट एंड ऑपरेशन कर रहा हूं तो ये नेटवर्क आईडी आ रहा है, लेकिन इससे जब मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूं तो ये नेटवर्क आईडी नहीं आ रहा है. मीन्स ये तो हो नहीं सकता. अब यहां पर क्या है कि दो अलग अलग सबनेट मार्क्स पे नेटवर्क आईडी मैच कर रहा है, दो अलग अलग सबनेट मार्क्स पे नेटवर्क आईडी मैच कर रहा है, और इसमें से लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स कौन है, द लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स इज /25. द लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स इज /25. So definitely the packet will be forwarded to the interface ETH1. Means ये जो पैकेट है ये कहां से फॉरवर्ड हो जाएगा, it will be forwarded to the ETH. Similarly you have to think about the other. Similarly चलिए इसका तो आंसर मिल गया कि ये ETH1 से ही फॉरवर्ड होगा, क्योंकि अगर नेटवर्क आईडी मैच कर रहा है तो जिसका सबनेट मार्क्स हायर है उसी इंटरफेस से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे. इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है. दूसरा आईपी एड्रेस क्या है, दूसरा आईपी एड्रेस है IP2, इसका है 192.12.17.10. तो ऑफकोर्स इन दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का नेटवर्क आईडी कभी मैच नहीं करेगा. यू नो नीड टू चेक द एंडिंग ऑपरेशन विद द दिस एंड दिस सबनेट मार्क्स बिकॉज नन ऑफ द नेटवर्क आईडी इज मैचिंग. सो अल्टीमेटली वी विल चेक विद दिस. तो इसको हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे किससे,
एंड ऑपरेशन करेंगे /32 से, क्योंकि यहाँ पर सबनेट मास्क दिया हुआ है /32। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पार्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 192.12.17 एंड .10। ऑफ कोर्स ये जो नेटवर्क आईडी है फिर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है 17 एंड 5 है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आ रहा है 10। सो व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? इफ नन ऑफ द नेटवर्क आईडी इज मैचिंग, then forward the packet from the default network. If none of the network ID is matching, then forward the packet to the default network. So ultimately this packet will be forwarded to the ETH2, क्योंकि default network का interface क्या है ETH2 है. So ultimately the first packet will be forwarded to the ETH1 and this will be forwarded to the ETH2. So the right answer will become So my dear friend, this is the fundamental concept. If you know the concept and if you know how to apply your concept to solve the numerical, you can solve any kind of problem. So the rest of the problem we will discuss in the next lectures, that is the part 3. So that's all for today. Never forget to use this code, promo code IFA, to get the minimum 10% discount. So before leaving this session, never forget to subscribe this particular channel and press the bell icon button to get all the notification, and don't forget to put your valuable comments, because your one comments will inspire many engineering students. So that's all for today. Happy Diwali, stay happy, मस्त रहिए, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए और मेहनत करिए और लाइफ में वो अचीव करिए जिसके लिए आपने ड्रीम देखा है। बाय, टेक केयर।